Hello students, we are seeing unit 2, that is organ system and diseases. Okay, in this video we are going to solve the worksheet. Okay, we are going to solve worksheets that are on respiratory system. Okay, first of all let us focus on worksheet number 1. आप लोग क्या करना है, अपने अपना वर्कबुक ओपन करो साइंस का और उसमें की वर्कशीट नंबर 1 ओपन करो जो कि दी हुई है पेज नंबर 24 में. ओके, चलो. सो व्हाट इज वर्कशीट नंबर 1? इट इज recap. Recap means what? Recap means it is related to what you have studied in previous classes. इसके पहले के क्लास में आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्या जाना था, उससे रिलेटेड ये वर्कशीट है. ठीक है. सी, use your ideas from the various previous classes and your imagination. Use the following 2 columns to jot down your thoughts. The third column will be filled once you have attended all classes on respiratory system. Actually we are doing it after studying respiratory system, so we will do the simultaneously. See, column number 1 देखो क्या है. What do I know about the respiratory system? चैप्टर शुरू करने से पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमें क्या पता था, उसका आंसर आपको क्या किया है उसमें लिख के दिया हुआ है. देखो क्या है. I know about respiration. पिछले साल आपको रेस्पिरेशन क्या है पता था. I know about respiration. It means breathing. We take air in and out by using our nose. Taking air in is called inhalation. Taking air out is called exhalation. Okay? ये आंसर आपको आपके वर्कबुक में लिखना है. फिर से देखो, ये जो है आपको आपकी नोटबुक के अंदर, आपकी जो वर्कबुक है वर्कबुक के अंदर लिखना है. ठीक है. क्या लिखना है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मेरे साइड में. तो क्या? I know about respiration. It means breathing. We take air in and out by using nose. Taking air in is called inhalation and taking air out is called exhalation. Okay? चलो मूव होते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ. What is it? What do I want to find out about respiratory system? देखो नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है, आपके स्क्रीन के ऊपर है. What do we do? Why do we do respiration and how is it done? हमें पिछले साल रेस्पिरेशन का मीनिंग पता था लेकिन डिटेल में प्रोसेस हमने इस साल पढ़ी. ठीक है ना. तो हम क्या जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन एंड हाउ इट हैपन्स इन आवर बॉडी. ओके. सो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको क्या करना है, आपके वर्कबुक में लिखना है. लिखो, व्हाई डू वी डू रेस्पिरेशन एंड हाउ इट इज डन. ओके. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट कॉलम. व्हाट इज इट? What did I learn? अभी रेस्पिरेशन के बारे में in this year what did I learn? What I learned? Number 1, I know why do we do respiration. Number 2, we do it to get energy. Number 3, we take in oxygen into our body and take out carbon dioxide. It involves nostrils, lungs, windpipe, diaphragm, etc. Okay, so these are points what we know about respiration. These are shown on your screen. Write them in your workbook. Okay. After that, let us move to the worksheet number 2. What is it? It is related to parts of respiratory system. Okay, there is a diagram shown on your screen, है ना. It is also given in your worksheet number 2. What is it? This is our respiratory system. What is it? This is our respiratory system. What we have to do? We have to give names to proper parts in it. हमें क्या करना है, अलग अलग parts को उसमें names हमें क्या करने हैं, देने हैं. Okay. So see, what are different parts? मैंने डायग्राम में मेंशन किए हैं वो पार्ट्स. देखो, पहला पार्ट जो है वो है नॉस्ट्रिल्स, देन नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के बाद में है फेरिंग्स, देन ट्रकिया, देन ब्रोंकस, लंग्स, ब्रोंकियोली, अल्वियोली, डायफ्रैगम. ठीक है. ये सारे पार्ट जैसे मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाए हैं वैसे के वैसे आपको क्या करने हैं, आपके वर्कशीट में ड्रॉ करने हैं. और देखो वहाँ पे स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. ओके. Write these names.
लिखे? Okay. Now we will move to the next worksheet, that is worksheet number 3. It is related with respiratory system again. What are they? See, first fill in the blanks. Fill in the blanks. See, number 1, nostrils are present in what? Nostrils are present in which part of our body? The answer is given here. What is it? It is nose. Nostrils are present in our nose. Okay. Second, pharynx is present between which two parts? Pharynx जो है हमारा कौन से दो पार्ट्स को ज्वाइन करता है? pharynx join nasal cavity and windpipe. windpipe कहाँ पे जाता है आपके? जो नेक में से पास होता है विंड पाइप है ना, थ्रोट में से. सो विंड पाइप और नेजल कैविटी दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट हमारे इसमें होता है, दैट इज what it is called as pharynx, है ना. So the answer of second fill in the blanks is pharynx is present between the nasal cavity and trachea. Now move to the third part. थर्ड क्वेश्चन, what is it? diaphragm. diaphragm कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके रिब केज के नीचे वाले पार्ट में diaphragm प्रेजेंट होता है ना. तो उसका फंक्शन वो क्या है? diaphragm is a large flat muscle which help us to breathe. diaphragm is a large flat muscle which help us breathe. Okay. Question number 4. alveoli is a dash like structure. alveoli किसके जैसे दिखता है? It is like a bag. You can write the answer as bag or sac. Okay. What is the answer of fourth question? alveoli is a sac-like structure. alveoli is a sac-like structure. See the next question. Lungs are located on both sides of what? They are located on both sides of rib cage. rib cage के जो दो पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स में आपका क्या है? lungs located है. Okay. When diaphragm contract, it pulls lungs down and air is filled in lungs. देखो fill in the blanks आंसर के साथ बताई मैंने. When diaphragm contract, it pulls lungs down and air is filled in lungs. लिखो अपनी वर्कबुक में. Next question is trachea. Divide into two tubes called trachea. जो wind pipe होता है उसको वो दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, और दोनों पार्ट फिर लंग्स के अंदर क्या होते हैं? एंटर होते हैं. तो ये जो दो पाइप्स है, पार्ट्स है, उनका नाम क्या है? दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकस. दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकस. आपको लंग्स की डायग्राम यहाँ पे दिख रही है, वहाँ पे ब्रोंकस पार्ट देखो कहाँ पे है. ओके. ट्रकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकस. ठीक है. व्हेन diaphragm expands, it pushes lungs up and air is pushed out of lungs. Okay. When diaphragm expand होता है मतलब upward direction में मूव होता है. अगर वो upward direction में मूव हुआ तो it pushes lungs up and air is breathed pushed out of lungs. Okay. So H का आंसर क्या है? When diaphragm expand, it pushes lungs up and air is pushed out of lungs. Okay. Next देखो, trachea is known as what? Trachea, it is also called as windpipe. Trachea is also known as windpipe. Next, nasal cavity has dash that moisten the air going inside. आपके नेजल कैविटी में एक सब्सटेंस होता है, एक पर्दे जैसा सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस मेम्ब्रेन. नाम याद में रखो. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज म्यूकस मेम्ब्रेन दैट मॉइस्चर द एयर गोइंग इनसाइड. आप जो एयर ब्रीद इन करते हो उसको थोड़ा सा वो मॉइस्चर मतलब गीली बनाता है. कौन? म्यूकस मेम्ब्रेन. आई का आंसर है म्यूकस मेम्ब्रेन. के आई नहीं, जे का आंसर है म्यूकस मेम्ब्रेन. के सिलिया ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर. सिलिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके नेजल कैविटी में छोटे छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज सिलिया. जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आजू बाजू के डस्ट पार्टिकल्स भी आपके नोज में एंटर होते हैं, तो ये लंग्स में जाएंगे तो लंग्स को हार्म कर सकते हैं. तो ये जो आपके नेजल कैविटी में जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, जिसके वजह से ये आपके लंग्स में एंटर ना हो. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ के? सिलिया ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर. ओके. सो दिस वेर all fill in the blanks type questions in worksheet number 3. Now let us move to the next question. Give reason. Lungs are pink in color. Lungs pink कलर के होते हैं. क्यों होते हैं पिंक कलर के? क्या आप सोच सकते हो कुछ?
वाई लंग्स आर पिंक इन कलर? बिकॉज लंग्स मोस्टली कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज। लंग्स में मोस्टली क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जिनके अंदर ब्लड फिल किया हुआ होता है, ब्लड भरा हुआ होता है। और ब्लड पहले कैपिलरीज है, उसके बाद में मसल्स है, उसके बाद में लंग्स का आउटर स्ट्रक्चर है। तो वो रेड कलर जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा फेंट होके बाहर से आपको कैसे दिखता है? पिंक दिखता है। बाहर से कैसे दिखता है? पिंक दिखता है। सी, गिव रीजन। लंग्स आर पिंक इन कलर। Lungs are pink in color. Why? The lungs are pink in color because it has blood capillaries in it. It has blood capillaries in it filled with blood and filled with blood. Blood is present inside capillaries which appears pink when observed from outside. जब बाहर से देखते हैं हम, तो हमें बाहर से मतलब लंग्स के बाहर से, तो हमें वो कैसे दिखते हैं? They appear to be pink. ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी 3 वर्कशीट्स क्या हुई? फिनिश हुई। आपको क्या करना है? ये वर्कशीट्स जो है आपके वर्कबुक में सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में ग्रुप के ऊपर उसके क्या करने हैं? फोटो डालने हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।